Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is part 2 of Morphology of Flowering Plants. First question is, an example of edible underground stem is carrot, sweet potato, groundnut या फिर potato. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? Potato. Next question is, placenta and pericarp both are edible portion in apple, tomato, banana या फिर potato. तो ये किसके अंदर होते हैं? In tomato. When the margin of the sepals or petal overlap another without any particular direction, the condition is termed as vexillary, twisted, imbricate या फिर velvet. तो ये किस में देखने के लिए मिलता है? कैसिया में और गुलमोहर में. कौन सी तरह की एस्टिवेशन होती है? दैट इज imbricate. Next question is, an aggregate fruit is one which develops from multicarpellary syncarpus gynoecium, multicarpellary apocarpus gynoecium, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस या फिर मल्टीकार्पलरी सुपीरियर ओवरी. तो ये कहाँ से डेवलप होते हैं? फ्रॉम द मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन मेज, वीट, कैस्टर या फिर पी. तो ये किसके अंदर होते हैं? हमारे पी के अंदर. दैट इज इन डाइकोट. सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन. सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस किसके अंदर नहीं होता? कोकोनट, ग्राम, ग्राउंडनट या फिर मेज. तो ये किसके अंदर नहीं होता? हमारे कोकोनट के अंदर. Next question is, in China rose the flowers are actinomorphic epigynous with velvet estivation, zygomorphic hypogynous with imbricate estivation, zygomorphic epigynous with twisted estivation या फिर actinomorphic hypogynous with twisted estivation. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? actinomorphic hypogynous with twisted estivation. Next question is, placentation in tomato and lemon is marginal, parietal, axile या फिर free central. तो कौन सी होती है ये? axile. Vexillary estivation is the characteristic of the family Solanaceae, Fabaceae, Brassicaceae या फिर Asteraceae. तो ये किस फैमिली में देखने के लिए मिलती है? Fabaceae. Phylloid is present in Australian Acacia, Spargus, Opuntia या फिर Euphorbia. Phylloid किस में देखने के लिए मिलता है? Australian Acacia के अंदर. Cymose inflorescence is present in Trifolium, Solanum, Brassica या फिर Sesbania. तो किस में मिलेगा ये? Solanum के अंदर. फैमिलीज से आ रहे हैं क्वेश्चंस. The eyes of the potato tuber are axillary bud, flower bud, root bud या फिर shoot bud. तो ये क्या होती है हमारी? axillary buds. The correct floral formula of chili is. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस फैमिली का एग्जाम्पल है. That belongs to family Solanaceae. तो Solanaceae का एग्जाम्पल है और आपको एक एग्जैक्ट फ्लोरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड. A drupe develop in tomato, wheat, mango या फिर pea. तो हमारी जो NCERT है उसमें दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंगो एंड कोकोनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन धतूरा, गुलमोहर, मस्टर्ड या फिर टोमेटो. तो किस में होते हैं? हमारे गुलमोहर में. यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है? हमारी बायलेटरल सिमेट्री. वर्ल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशन आर प्रेजेंट इन चाइना रोज, कैलोट्रोपिस, एल्स्टोनिया या फिर नीम. तो वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एक ही जगह देखने के लिए मिलती है. किसके अंदर? एल्स्टोनिया के अंदर. Which one of the following pair is wrongly matched while the remaining three are correct? Bryophyllum leaf birds, ठीक है. Agave bulbil, ठीक है. Penicillium conidia. Water hyacinth runner. Water hyacinth के अंदर hopset होता है तो ये incorrect दिया हुआ है. Sweet potato is homologous to ginger, potato, turnip या फिर colcasia. तो same origin और different function. Adventitious root है और ये किसके इक्वल होगा? हमारे turnip के homologous. Which one of the following diagram represent the placentation in dianthus? Dianthus और primrose के अंदर कौन सी होती है? free central. तो सबसे पहले हमें ये क्या दी हुई है? marginal. किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? P के अंदर. सेकंड क्या दी हुई है? parietal. ये किस में होती है? mustard में और argemone में. ये क्या दी हुई है? exile. ये किस में होती है? tomato, lemon और china rose के अंदर. और ये लास्ट क्या दी हुई है? free central. ये किस में होती है? dianthus और primrose के अंदर. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लास्ट इज करेक्ट. The ovary is half inferior in the flowers of गुआवा, कुकुम्बर, पीच या फिर कॉटन. तो प्लम, पीच और रोज इन तीनों के अंदर पेरिगाइनस कंडीशन मिलती है जिसके अंदर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है. द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस इज पॉलीएडल्फस, डायडल्फस, मोनोडल्फस या फिर पॉलीएंड्रस. तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन देखने के लिए मिलती है? दैट इज मोनोडल्फस. The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to the which part of the seed in other monocotyledons? Plumule, endosperm, cotyledon या फिर areolon layer. तो ये किसका इक्वल होता है? हमारा cotyledon को ही क्या बोलते हैं? scutellum. Keel is the characteristic of the flower of bean, cassia, गुलमोहर या फिर calotropis.
पी और बीन के अंदर ही कील क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट, इन यूनिलोकुलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, बेसल, मार्जिनल या फिर फ्री सेंट्रल। तो यहाँ पर कौन सी हमारी प्लेसेंटेशन होती है, दैट इज बेसल। किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर के अंदर। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर, प्लम, गुआवा या फिर ब्रिंजल। अभी पहले भी किया था, प्लम, पीच और रोज के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, पेरिगाइनस। Which one of the following is a xerophytic plant in which the stem is modified into the flat, green and succulent structure? Opuntia, Hydrilla, Cassoneria या फिर Acacia। तो ये किस में देखने को मिलती है, Opuntia के अंदर। The estivation of petal in the flowers of cotton is correctly shown in। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में होती है, पी में और बीन में। सेकंड क्या दिया हुआ है, वेलवेट, ये किस में देखने के लिए मिलती है, कैलोट्रोपिस में। थर्ड दिया हुआ है हमें इम्ब्रिकेट, कैसिया और गुलमोहर के अंदर होती है। और लास्ट क्या दिया हुआ है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसके अंदर होती है, हमारी चाइना रोज और कॉटन के अंदर। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर बाय स्टोलन, रनर, ऑफसेट या फिर सकर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी होगी, ऑफसेट। द फ्लोरल फार्मूला इज दैट ऑफ, ये फ्लोरल फार्मूला किसका दिया हुआ है, सोयाबीन, टोबैको, सनहैम्प या फिर ट्यूलिप। तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए किसका फ्लोरल फार्मूला है, तो ये है हमारी फैमिली सोलोनेसी का। फिर आपको पता होना चाहिए कि सोलोनेसी का मेंबर इनमें से कौन सा है, तो टोबैको इज द मेंबर ऑफ फैमिली सोलोनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर बाय ऑफसेट, सकर, राइजोम या फिर रनर। तो मिंट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सकर। Cotyledons and testa respectively are edible parts in, out of NCERT क्वेश्चन है। The example of exile presentation is Dianthus marigold, lemon या फिर argemone। तो लेमन और हमारे टोमेटो के अंदर कौन सी होती है, exile presentation, कई बार आ चुका है। Thorns of bougainvillea and the tendrils of cucurbita are the example of retrogressive evolution, analogous organ, homologous organ या फिर vestigial organ। तो यहाँ पर ये जो है हमारा evolution चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, homologous organ का। Next is endosperm is consumed by the developing embryo in the seed of maize, castor, coconut या फिर pea। तो किसके अंदर कंज्यूम हो जाता है हमारा, पी के अंदर। इसके अंदर हमारे जो सीड होते हैं दैट आर नॉन एंडोस्पर्मिक। रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ फॉल्स सेप्टम किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, पी, मस्टर्ड, लेमन या फिर सनफ्लावर। तो किस में मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइकार्पुलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा and fruit with capsule or berry are the characteristic feature of Asteraceae, Solanaceae, Brassicaceae या फिर Liliaceae। ये सारे फीचर हमें किस फैमिली में मिलेंगे, Solanaceae फैमिली के अंदर। What type of placentation is seen in the sweet pea? Basal, free central, exile या फिर marginal। तो इसमें कौन सी होती है, marginal। ओके, थैंक यू।